Hello, everyone, again. Um, let's start question number 21 of chemical energetics. Enthalpy changes that are difficult to measure directly can often be determined by using Hess's law to construct an enthalpy cycle. Which enthalpy change is indicated by X in the enthalpy cycle shown? Okay. So basically, constituent elements react कर रहे हैं और दोनों रिएक्ट करके मीथेन मॉलिक्यूल बनाएंगे। सिमिलरली कार्बन की कंबस्शन होगी तो कार्बन फॉर्मेशन कह रहे हैं। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है और ये वाटर की फॉर्मेशन है। ओके, सो एक्स इज बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ओके, if this arrow shows the formation of carbon dioxide, obviously this arrow shows the formation of water. So this is standard enthalpy change of formation of water. That's the first thing in my mind. Now we have two different sort of options here: combustion of hydrogen and formation of water. Let's make the equation. ये हाइड्रोजन गैस है हमारे पास, हम इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस बर्न करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ओके, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि दिस इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सिमिलरली अगर मैं हाइड्रोजन गैस की कंबस्शन करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ओवरली ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, and this is the standard enthalpy change of combustion of hydrogen. All right, so combustion को वो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। combustion को वो 4 से मल्टीप्लाई कर नहीं सकते इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 2 मोल्स हैं। सो बेसिकली हम 2 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया मेरा, और ये 4 वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि 2 मोल्स है तो मैं 4 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूँ। 4 से मल्टीप्लाई करने की जरूरी है कि यहाँ पर 4 हो आपके पास। ठीक है, नाउ ऑब्वियसली कंपटीशन एग्जिस्ट बिटवीन सी एंड डी। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑप्शन सी में भी है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑप्शन डी में भी है। तो या तो सी आंसर है या डी आंसर है, बट वी नीड टू डिसाइड कि वेदर इट शुड बी प्लस और माइनस। तो आप नोट करें कि ये जो एरो है ये एक्चुअली डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन में ये एरो है उसी डायरेक्शन में ये भी एरो है। तो ऑब्वियसली जो भी वैल्यू होगी वो प्लस फॉर्म में ही होगी, वो माइनस फॉर्म में नहीं होगी। अगर ये एरो इस तरह से होता तो फिर ऑब्वियसली मैं इसको रिवर्स करके या इसकी वैल्यू को माइनस करके लेता, लेकिन ये सेम डायरेक्शन के अंदर है, विच इज वाई हम इसको multiply by 2 करेंगे and obviously it's going to be the positive value. So I think D is going to be the right answer for X. Okay. Question number 22. Enthalpy change of formation of carbon dioxide is minus 394. Enthalpy change of formation of water is minus 286. Enthalpy change of formation of methane is minus 74. Enthalpy change of combustion of methane find out करने के लिए कह रहे हैं। So first of all, let's make the diagram here. Formation of methane देखते हैं, carbon solid, hydrogen gas, converting into methane gas. That's the formation of methane, और इसकी value is given minus 74. Okay. Now formation of carbon dioxide is basically the combustion of carbon. So arrow downward होंगे. Formation of water meaning combustion of hydrogen, arrow downward होगा. Methane की combustion करेंगे, it is converting into both carbon dioxide and water. Carbon की combustion value is minus 394. Hydrogen की combustion value is minus 286 times 2 क्योंकि equation में 2 moles हैं, and we need to find out the value of this. Okay.
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बना लेते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस, ये दोनों वैल्यू माइनस, इक्वल्स टू 0 करेंगे तो विल गेट द आंसर। तो ये हो जाएगा, अरेंज कर लेते हैं वैल्यूज को, प्लस -74 प्लस x माइनस -394 माइनस -286 टाइम्स 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से आ जाएगा -74 देन x, ओके, then plus 394 and then plus 286 times 2, 286 times 2, 286 times 2 is going to be 572 equals to 0. Now 572 plus 394 minus 74 892, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस 892 इक्वल्स टू 0, then x equals to minus 892 kilojoules per mole, and therefore A is going to be the right answer. Let's talk about next question. The diagram shows the skeletal formula of cyclopropane. So first of all, each carbon has 4 hydrogen bonds. So this one is third, this one is fourth, and this one is third, this one is fourth. बाकी तो 2 bonds cycle में बने हुए, structure में I mean. तो cyclopropane का formula होता है C3H6. Okay. The enthalpy change of formation of cyclopropane is this, and enthalpy change of atomization of graphite is this. The bond enthalpy of hydrogen and CH is this. What value for the average bond enthalpy of CC bond in cyclopropane that can be calculated from this data? So we have multiple values here in this question. We have bond energy ka data, we have atomization ki value, and we have formation ki value. So what we can do is कि in this sort of multiple data, let's make the formation of cyclopropane. Cyclopropane की सबसे पहले equation बना लेते हैं, ठीक है? Cyclopropane का formula है C3H6. इसकी formation के लिए I need 3 carbon atom and I need 6 hydrogen. Okay. Under standard condition ये solid है, under standard condition ये gas है, and under standard condition ये हमारे पास gas होगा. इसकी वैल्यू हमें गिवन है which is plus 53.3. ओके, ना कार्बन जो है वो हमारे पास सॉलिड है, हमने इसको एटोमाइज करना है. सो कार्बन सॉलिड is converting into carbon gas, and carbon gas is basically atomization, और atomization हमारे पास +717, and since कार्बन के 3 मोल्स हैं तो atomization में भी यहाँ पर अगर 3 हैं तो obviously यहाँ पर भी 3 होंगे. तो वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 717 into 3, तो it's going to be 2151 plus 2151. Then we have hydrogen molecule. हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू एग्जामिनर ने हमें दी हुई है 436. हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 से, राइट? तो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 1380 प्लस 1308, सॉरी. सो ये आपके पास टोटल हो जाएगा 3459. दैट इज माय रिएक्टेंट. ओके, प्रोडक्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं. प्रोडक्ट में वी हैव कार्बन कार्बन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. सो लेट्स टॉक अबाउट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फर्स्ट. कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी है 410. हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 2 3 4 5 6 से, क्योंकि 6 बॉन्ड्स है हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू आई बिलीव हो जाएगी 2460. एंड गाइस, हाउ मेनी सीसी बॉन्ड्स? ये फर्स्ट सीसी बॉन्ड है, ये सेकंड और ये थर्ड, और हमें सीसी बॉन्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो सीसी बॉन्ड बेसिकली हमारे पास 3 हैं, तो हम उनको 3x ले लेते हैं. ओके, हमारे पास, आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एक्चुअली. oops
यहाँ रखते हैं, हम यहाँ पर रखते हैं डेल्टा एच आर इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जो कि बॉन्ड एनर्जी का फॉर्मूला है। डेल्टा एच आर की वैल्यू हमें गिवन है +53.3 इक्वल्स टू आर की वैल्यू हमें गिवन है विच इज 3459 माइनस प्रोडक्ट में हमारे पास है 2460 plus 3x, and we need to find the value of x. So the value of x is going to be 315.23 kilojoules per mole. The right answer, obviously, guys, is going to be B. Okay, I hope it makes sense to you. Question number 24 seems like it's a very tricky question, because इस tricky question के अंदर working बहुत मुझे लग रहा है कि होगी. Student fuels, each fuel, so 1000 cm3 is basically 1000 gram, because 1 gram is always equals to 1 cm3. 20 degrees Celsius to 100 degrees Celsius. Each fuel undergoes complete combustion. Which fuel would produce? My goodness, I have to check each and every experiment. So in the first step, let's apply delta Q, which is equals to mc delta T. Now mass कितना है मेरे पास? Obviously 1 dm cube, and 1 dm cube is equals to 1000 cm cube, and since 1 cm cube equals to 1 gram, so 1000 cm cube equals to 1000 gram. Specific heat capacity की value 4.12 है हमारे पास, एंड डेल्टा टी जो है वो 20 to 100 डिग्री सेल्सियस गया, इसका मतलब जो रेज है वो चेंज है वो 80 का है. तो यहाँ से डेल्टा क्यू की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 329,600 जूल्स. एंड गाइस मैंने इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 329.6 किलो जूल्स. ओके, फॉर ऑप्शन ए, 1 मोल में आपके पास 1367 किलो जूल्स एनर्जी है, जबकि हमने एनर्जी कितनी निकाली है? 329.6 किलो जूल्स. सो उसमें मोल्स कितने हो जाएंगे? सो मोल्स हो जाएंगे 329 divided by 1367 is going to be 0.24 moles. Now guys, ethanol का फॉर्मूला होता है C2H5OH, और जब आप इसकी कंबस्शन करोगे ना, so you will get 2 moles of carbon dioxide. Okay, तो ये 1 मोल है, ये 2 मोल है. तो अगर आपके पास 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट डिटरमाइन करने के लिए मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा. सो मेरे पास 0.48 मोल्स आ जाएगा, 0.48 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, इसी तरह से मुझे सबकी वर्किंग करनी पड़ेगी. मीथेन, लेट्स चेंज द कलर हियर. मीथेन की कंबस्शन करेंगे तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा. यहाँ पर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है. बट यहाँ पर 890 किलो जूल पर मोल एनर्जी दी हुई है उन्होंने हमें ऑप्शन में. तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1 मोल इक्वल्स टू 890 किलो जूल्स. सो अगर आपके पास
0.60 किलो जूल्स है, तो बताइए कितनी एनर्जी होगी। सो 329.6 divided by 890, so it's going to be 0.370 moles, and obviously जो moles आपने मीथेन के डिटरमिन किए हैं वही कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। 0.370 moles. Let me calculate 329.6 divided by 890, so it's 0.370 moles. Okay, तो ये हमारा इथेनॉल हो गया, ये हमारा मीथेन हो गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथेनॉल। मिथेनॉल की एनर्जी गिवन है। मिथेनॉल का फॉर्मूला है CH3OH। आप इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, अगेन यू विल गेट 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 1 मोल है और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल है। So let's find out the moles of methanol. By 1 mole of methanol has how much energy? 715 kilojoules. हमने 329.60 kilojoules कैलकुलेट किए, तो उससे मोल्स हमारे पास कितने आएंगे? तो ये हो जाएगा 329.6 डिवाइडेड बाय 715, so it's 0.46 moles. और आप जानते हैं कि जो मोल्स मेथनॉल के हैं वही मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, तो अगर आपने इतने मोल्स मेथनॉल के बर्न किए तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इतने ही मोल्स मिलेगा आपको। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स चेंज द कलर लेट्स सपोज हम ये ले लेते हैं। टॉक अबाउट प्रोपेन नाउ। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। अगर हम उसको रिएक्शन करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 moles of carbon dioxide and 4 moles of water. ओके, ऑक्सीजन को हम बाद में बैलेंस कर सकते हैं, ऑक्सीजन का बैलेंस करना यहाँ इतना जरूरी है नहीं। ओके, बट आप कर सकते हैं। ये 1 मोल है गाइस और ये 3 मोल है। लेट्स फाइंड आउट द एनर्जी, लेट्स फाइंड आउट द मोल्स वाया एनर्जी। तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज 222 किलो जूल्स एनर्जी। आपने 329.60 किलो जूल्स कैलकुलेट किए, तो मोल्स कितने आएंगे? तो जनाब आपके पास मोल्स आ जाएंगे 329.6 डिवाइडेड बाय 0002, सो ये हो जाएगा आपके पास 0.148 मोल्स। 0.148 मोल्स, एंड सिंस 1:3 का रेशियो है तो मैं इन मोल्स को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से, तो मेरे पास मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएंगे। मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो you will get 0.445 moles of carbon dioxide. 0.445 moles of carbon dioxide. तो ये moles of carbon dioxide, ये आपके थे moles of carbon dioxide, ये भी आपके थे moles of carbon dioxide, और ये आपके ऑलरेडी मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे कम मोल्स जो हैं वो किस ऑप्शन के अंदर आए आपके पास? इस ऑप्शन के अंदर आए, यानी मीथेन में आए। इसका मतलब मीथेन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। ओके, so next question, question number 25. Solid sulfur consists of molecule made up of 8 atoms covalently bonded together. The bonding in sulfur dioxide is this. Enthalpy change of combustion of sulfur is given. Energy required to break 1 mole of sulfur into gaseous atom is given. By the way, this is going to be the atomization. Okay, the bond oxygen की bond energy is given. Use this data. What is the value of the SO bond enthalpy? So हमारे पास सल्फर की कंबशन हो रही है और कन्वर्ट हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड में। लेट्स मेक द इक्वेशन फर्स्ट। सल्फर की कंबशन हो रही है
in the presence of water it is converting into sulfur dioxide. ओके 8 to the 16, तो यहाँ 8 लिखो बैलेंस करने के लिए। ये कंबशन की वैल्यू एग्जामिनर ने मुझे ऑलरेडी दी हुई है -2376, मैं उसको लिखूंगा। ऑलराइट, ये सॉलिड है आपके पास अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, ये गैस है और ये भी गैस है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी मालूम है विच इज 496। मैं उसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर देता हूं बिकॉज वी हैव 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो मेरे पास आ जाएगा 3968। ओके, आई हैव सल्फर S8 सॉलिड, मैं इसको एटोमाइज कर देता हूं और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं गैसियस एटम में। तो इस पूरे की एनर्जी मुझे एग्जामिनर ने ये दी हुई है, ठीक है। ये 1 एटम की नहीं, पूरे 8 एटम्स की, तो ये हो जाएगा 2 2 3 2। सो व्हाट वी कैन डू इज कि हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6200, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट हो गया एंड प्रोडक्ट में जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड है, और वो सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर ऑक्सीजन का बॉन्ड डिटरमिन करना चाह रहे हैं। तो मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हैज 2 बॉन्ड्स, राइट। एक सल्फर ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है और दूसरा सल्फर ऑक्सीजन का ये बॉन्ड है। सो अगर आपके पास, ये थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ SO2 इज इक्वल्स टू 2 SO बॉन्ड। सो अगर आपके पास 8 मोल्स हैं इक्वेशन में सल्फर डाइऑक्साइड के, तो बताइए आपके पास कितने बॉन्ड्स होंगे। तो ये हो जाएंगे 16 SO बॉन्ड, एंड ऑब्वियसली वो मुझसे SO बॉन्ड की एनर्जी पूछ रहा है, तो मैं इसको 16x कर लेता हूँ। मेरे पास फॉर्मूला है डेल्टा HR इक्वल्स टू रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट का, जो कि मैंने बॉन्ड एनर्जी में यूज किया है। डेल्टा HR की वैल्यू है -2376, रिएक्टेंट मेरे पास 6200 है, प्रोडक्ट मेरे पास सल्फर डाइऑक्साइड था, उसमें सल्फर ऑक्सीजन के 16 बॉन्ड्स हैं, तो मैं 16x कर लूंगा, तो यहाँ से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। सो द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी हाउ मच, लेट्स कैलकुलेट दिस। ये हो जाएगा +536 kilojoules per mole. Do we have 536? Yes, D is going to be the right answer. Okay, I hope it makes sense to you. Then carbon monoxide and methanol can react together to form ethanoic acid. Okay. Standard enthalpy changes of combustion are given in the table. What is the value of delta HF reaction between carbon monoxide and methanol? So यार हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, हमारे पास मेथनॉल है, ये दोनों मिलकर रिएक्शन करके इथेनॉइक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। ओके, द इशू इज कि ये आर की वैल्यू मालूम करने के लिए कह रहे हैं हमसे, और हमें कंबशन का डेटा गिवन है। इसका मतलब हम इसकी कंबशन करेंगे, इसकी भी कंबशन करेंगे, इसकी भी कंबशन करेंगे, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ मौजूद नंबर से नहीं करते हम कंबशन के केस में। कार्बन मोनोऑक्साइड की वैल्यू है -283.0, मेथनॉल की वैल्यू है -726.0, और इसकी वैल्यू है -874.1। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाया हमने। ये दोनों वैल्यूज ऑब्वियसली बेटा क्लॉकवाइज से मैच करेंगे, प्लस होंगी, ये दोनों माइनस होंगी, इक्वल्स टू 0 करेंगे, सो दैट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू। लेट्स रीअरेंज दिस इक्वेशन। तो ये हो जाएगा डेल्टा HR, ये मैंने प्लस लिया, प्लस -874.1 माइनस -283.0 माइनस
726.0 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा डेल्टा एच आर माइनस 874.1 प्लस 283 प्लस 726, दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस 283 प्लस 726 इक्वल्स टू 0। डेल्टा एच आर minus 874.1, so it's going to be 1 plus 134.9 equals to 0. Then delta HR equals to minus 134.9 kilojoules per mole. The right answer is going to be B. Question number 27. And question number 27 is easy because Hess's law is my favorite and it's easy to. Hess's law may be used to determine enthalpy changes using average bond and energies as shown in the diagram. आपको याद है मैंने Hess's law क्या कहा था? मैंने Hess's law के लिए कहा था कि reaction proceed in one step or more than one step, total amount of energy remains same. Now we need to apply the Hess's law. U is the sum of average bond energies of the reactants and V is the sum of average bond energies of the product. For the reaction shown below, which expression will give a value of W, enthalpy changes of combustion of methane. Okay, तो ये इक्वेशन है हमारे पास। तो पहले तो ये समझो कि ये वन स्टेप रिएक्शन था और ये मोर देन वन स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स सेम। तो अगर ये W है तो समझ लो ये Y है। क्लियर? आई रिपीट, ये वन स्टेप प्रोसेस है, आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाया वन स्टेप के थ्रू। अब मैं इसी प्रोडक्ट को मोर देन वन स्टेप के थ्रू बना सकता हूँ एंड फॉर दैट ये मेरा स्टेप 1 हो जाएगा और ये मेरा स्टेप 2 हो जाएगा। बट ऑब्वियसली ये यहाँ से यूं जाएगा तो ये गैसियस कन्वर्ट होकर इसमें आएंगे मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो हम इसके लिए भी कुछ ऐसे ही कर सकते हैं। लेट्स मेक द इक्वेशन। दिस इज मीथेन प्लस ऑक्सीजन, ओके, मीथेन प्लस ऑक्सीजन, एरो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2H2O। तो ये हो गया आपका W, जिसको उसने स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन कहा हुआ है। आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट ये आपका U है और आप इसमें गैसियस कार्बन एटम, गैसियस हाइड्रोजन एटम और गैसियस ऑक्सीजन एटम जो है ना वो फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप यहां से यहां आएंगे तो ऑब्वियसली ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बनेंगे, राइट। ये आपका हो गया V। सो अगर मुझे यहां से निकालना हो तो W इक्वल्स टू U माइनस V। तो U माइनस V ये होगा ना बेटा, ये वैसे तो ये प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, लेकिन जब मैं इसका एरो फ्लिप करूंगा प्रोडक्ट की तरफ जाने के लिए तो जाहिर सी बात है ये प्लस के बजाय माइनस हो जाएगा। ऑलराइट, तो U माइनस V कहाँ लिखा हुआ है? A में लिखा हुआ है। A इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, तो मैंने इस साइकिल को मीथेन के ऊपर अप्लाई करके दिखाया आपको। क्वेश्चन 28। An important reaction in the manufacture of nitric acid is the catalytic oxidation of ammonia. For every mole of oxygen that reacts in this way, 181.8 kilojoules per mole energy is given. Yani every mole, 1 mole of oxygen gives you this much energy. ठीक है? A factory makes 2.5 into 10 to the power 5 moles of NO every day. How much energy in kilojoule is released every day? Okay, तो पहली तो बात ये है कि भाई इक्वेशन में 4 moles 4 moles of NO reacting with 5 moles of oxygen every day
फैक्ट्री कितना बना रही है 2.50 इंटू 10⁵ मोल्स। सो एवरीडे ऑक्सीजन कितना बनेगा? ओके 2.50 exponent 5 into 5 divided by 4, that's 312,500 moles of oxygen. Now in the second step, आप जानते हैं कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से आपको एनर्जी कितनी मिल रही है? 181.8 किलो जूल्स। सो अगर आपके पास 312,500 मोल्स हैं ऑक्सीजन के, तो बताइए एनर्जी कितनी होगी? तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 181.8 से। तो ये एनर्जी आएगी आपके पास 5,681,2500 किलो जूल्स। तो 568 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर आई बिलीव। ठीक है 568 सिर्फ इसी में आ रहा है। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। Question number 29. In calculating the enthalpy change, delta H of an experiment involving solutions, the mass of the solution, M is the specific heat capacity, C is the temperature change, delta T. Which expression of for delta H is correct? Okay. यार सबसे पहले तो आप सबसे पहले यहाँ नहीं करते हैं, हम यहाँ कर देते हैं। सबसे पहले तो आप डेल्टा क्यू डिटरमिन करोगे, मान लो कि वो एक्स है आपके पास। ठीक है, एम सी डेल्टा टी यूज करके। दूसरी बात, आप हमेशा डेल्टा एच जो है वो 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हो, ये भी ध्यान में रखनी है आपने बात। सही है। और थर्ड की मुझे डेल्टा एच कैलकुलेट करनी है। सही है। आई थिंक सो कि ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, एंड ऑब्वियसली बेटा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एक्स, और वो 1 मोल के लिए होता तो डेल्टा एच हो जाएगा माइनस एम सी डेल्टा टी। माइनस का साइन इसलिए क्योंकि मैंने बताया कि सोल्यूशन जो है वो सॉल्युबल है, सॉल्युबल सॉल्ट है, सॉल्युबल कंपाउंड है, सॉल्युबल सब्सटेंस है। ठीक है, और वैसे भी ये वेक्टर क्वांटिटी होती है तो साइन लगाना जरूरी होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सो ये कहां पर हमारे पास है? डी में है, तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30। A butane burner is used to heat water. The MR of butane is 58. Standard enthalpy change of combustion is given 250 gram of water raised to this temperature. The burner before transfer 47% of the heat released from the burning fuel to the water. Assume that the butane undergoes complete combustion and none of the water evaporates. What is the minimum mass of butane that must be burned? Okay, तो सबसे पहली बात हम डेल्टा Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी अप्लाई करेंगे। मास जो है वो मेरे पास 250 ग्राम है, क्योंकि कंबशन में हमेशा मास ऑफ वाटर लेते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेटा बुकलेट के अंदर गिवन होती है 4.18। टेम्परेचर चेंज 100 माइनस 12 होगा, तो आई बिलीव 100 माइनस 12 इज गोइंग टू बी 88। ठीक है, सो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा 91960 जूल्स। ओके, फिर वो कह रहे हैं कि 47% ऑफ द एनर्जी इज रिलीज। तो जो एनर्जी आपने निकाली है वो 47% है। सो अगर 100% होता तो कितनी एनर्जी रिलीज होती? सो जनाब ये आ जाता 1957
659.57 जूल्स। इसको हम किलो जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाता है 195.659 किलो जूल्स। सही है। अब ये जो एनर्जी है ये तो 1 मोल में रिलीज हुई है, तो 1 मोल में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? -2877 किलो जूल्स। आपने कितनी एनर्जी रिलीज करवा दी है? 195.659 किलो जूल्स। सो यू विल गेट मोल्स फ्रॉम हेयर। तो मोल्स ऑफ ब्यूटेन आपके पास कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ ब्यूटेन हो जाएंगे 0.068 मोल्स। एमआर पता है, मास कैलकुलेट हो जाएगा, तो मास इक्वल्स टू मोल्स 0.068, और एमआर मेरे पास कितना है? 74। सो ये हो जाएगा आपके पास 3.94 ग्राम। 3.94 ग्राम कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा है। सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन 31। An energy cycle is drawn for the following reaction. The standard enthalpy of formation of this is this. यानी आपको BrF3 की फॉर्मेशन दी हुई है, यानी ये दिया हुआ है उसने आपको। Oops, ये दिया हुआ है। ठीक है। The enthalpy change of BrF3 liquid to BrF3 gas is this. यानी ये दिया हुआ है उसने आपको, ये वैल्यू दी हुई है +44, ये -301, और ये -301, ये +44। ऑब्वियसली मैं इसकी एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये 2 मोल है, यहाँ पर 2 मोल है, इसलिए इसकी एनर्जी को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। वो कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ BrF बॉन्ड इन BF3, और ये कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं आपसे, ये गिवन है आपको। सही है। दैट्स द होल प्रोसेस एक्चुअली। तो आप कैसे करेंगे उसको? वेट 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 वेट, यार इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं कि ये -301 है, और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ठीक। ये +44 है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से। ऑब्वियसली ये मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि वो BrF का बॉन्ड एनर्जी डिटरमिन करना चाहते हैं इन BrF3। सो दिस रिएक्शन इज one step, and this reaction is one step, whereas ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। तो इस पे हेसेस लॉ लग जाएगा। ये डेल्टा HR हो गया, ये डेल्टा H1, ये डेल्टा H2, ये डेल्टा H3, राइट? सो अप्लाई हेसेस लॉ ऑन इट, और ये हो जाएगा डेल्टा HR इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। दैट्स योर हेसेस लॉ ना, यही क्लास में भी करवाया है। डेल्टा HR हमारे पास कितना है? +698 इक्वल्स टू डेल्टा H1 हमारे पास कितना है? -301 मल्टीप्लाई बाय 2, इट्स गोइंग टू बी -602 प्लस 44 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 88, और डेल्टा H3 हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। ओके। सो अगर मुझे यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये हो जाएगा 698 प्लस 602 -88। तो यहां से आंसर हमारे पास x की वैल्यू का कितना आएगा? आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस। ये हो जाएगा 1212। ये जो 1212 है ये बेसिकली इस 2 मोल्स ऑफ ब्रोमीन के लिए। ओके, 2
moles of BrF3. So 2 moles of BrF3 में एनर्जी कितनी है आपके पास? 1012 किलो जूल्स, ठीक है। तो 1 मोल में कितनी एनर्जी होगी, क्योंकि हमें तो 1 मोल की कैलकुलेशन करनी है। तो 1 मोल में आ जाएगी आपके पास 606, आई थिंक सो, यस, 606 किलो जूल्स पर मोल। ऑलराइट, द थिंग इज कि मुझे तो BrF3 में BrF की बॉन्ड एनर्जी डिसाइड करनी है। तो BrF3 का स्ट्रक्चर क्या होगा? BrF3 का स्ट्रक्चर ये है, BrF3 यानी इसमें 3 बॉन्ड्स हैं BrF3 के। ये 3 बॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे तो एक बॉन्ड की एनर्जी चाहिए। तो मैं बेसिकली कहूंगा कि 3BrF की एनर्जी इज बेसिकली 606 किलो जूल्स पर मोल। मुझे तो एक BrF की एनर्जी चाहिए, एक BrF बॉन्ड की एनर्जी चाहिए। तो ये हो जाएगा 6 और 6 डिवाइडेड बाय 3, सो इट्स गोइंग टू बी 202 किलो जूल्स per mole. So 202 kilojoules per mole. I believe B is going to be the right answer. That's tough. That's challenging. मुझे लगता है कि questions को attempt करने के लिए you should know how to manipulate the data, how to arrange the data, how to read the values, how to apply the Hess's law carefully. All right. This is tough, really, really tough. Because for 1 mark का MCQ इतनी वर्किंग हो रही है, इसका मतलब यू हैव टू बी सो एक्सपर्ट। बट ऑब्वियसली इस टाइप के क्वेश्चन पूरे पेपर में एक ही होते हैं, एक से ज्यादा तो कभी भी नहीं होते। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ओरिजिनली chemists thought indium oxide, that is the formula INO. By experiment, they showed that 4.8 gram of indium combined with 1.0 gram of oxygen to produce 5.8 gram of indium oxide. The AR of oxygen is known to be 16. Which value of AR of indium is calculated using these data? Okay. So मुझे basically examiner ने indium oxygen का mass दे दिया है 1.0 ग्राम। So इस बात को यूज करते हुए मैं सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1 को डिवाइड कर देता हूँ 16 से, तो मेरे पास मोल्स आ जाएंगे 0.03125 1 यस 0.0, oops, ouch, my bad, it's not an atom, it's AR given है। तो ऑक्सीजन तो बेटा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा ना, तो 32 लेंगे। सो 1 डिवाइडेड बाय 32, 0.03125 मोल। ओके, ये मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ गए। सेकेंड स्टेप में क्या है कि हमारे पास इंडियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, कन्वर्ट होगा इंडियम ऑक्साइड में। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ये 2 मोल है, ये 1 मोल है। अगर आपने 0.03125 लिया था तो मोल्स ऑफ इंडियम कितने हो जाएंगे यहाँ से? सो मोल्स ऑफ इंडियम is going to be 0.0625 moles. Okay, now in the next step I need to find out the AR, and for that मैं मास को डिवाइड कर दूंगा मोल से। मास मेरे पास गिवन है 4.8, ये दिया हुआ है 4.8 ग्राम ऑफ इंडियम, सही है। मोल्स मेरे पास है 0.0625। सो यहां से AR
आपके पास आ जाएगा 76.8 which is going to be 77. The right answer is going to be B. Okay. After 32, 33 की बात करते हैं. Delta H1 is the standard enthalpy change of formation of methane. Excuse me. Delta H2 is the standard enthalpy change of combustion of carbon. 3 is the standard enthalpy change of combustion of hydrogen. Okay. Which expression is equivalent to delta Hc? So मैं क्या करता हूँ, मैं इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ आप लोगों के लिए. ये हो जाएगा मीथेन, ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में. जाहिर सी बात है मेरे पास फॉर्मेशन का डेटा है, मीथेन की फॉर्मेशन है मेरे पास. सो फॉर्मेशन ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड फॉर दैट I need these elements. All right. तो अगर ये दोनों मिलकर ये बनाएंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगी मीथेन की. All right. ये मिलकर बनाएंगे तो कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, ये मिलकर बनाएंगे तो कंबस्शन ऑफ कार्बन हो जाएगा. तो दोनों प्रोसेस हो रहे हैं. इसको मैंने नाम दे दिया है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन. यहां पर मेरे पास स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन. यहाँ पर है स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन. जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है तो मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा इसकी वैल्यू को. अब प्रॉब्लम ये है कि गाइस मैंने डेल्टा एच एफ मीथेन को डेल्टा H1 कहा है जो क्वेश्चन में गिवन है. कंबस्शन ऑफ कार्बन को मैंने डेल्टा H2 बोला है और इसको डेल्टा H3 बोला है, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना है मैंने इसको. तो 2 इंटू डेल्टा H3 सही है. और ये डेल्टा Hc की वैल्यू है मेरे पास. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो बना लेते हैं. ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस, ये दोनों वैल्यू माइनस, इक्वल्स टू 0. तो अरेंजमेंट करेंगे आप अगर इसका, तो वो अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा. आई एम रनिंग आउट ऑफ स्पेस एक्चुअली. आई विल ट्राई टू फिक्स इट. एंड ओह माय गुडनेस, आ ही नहीं सकता, आ नहीं सकता. ओके. सो बेसिकली ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा Hc इक्वल्स टू डेल्टा H2 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1. ओके, दैट इज माय फाइनल अरेंजमेंट. जगह नहीं थी तो मैंने डायरेक्ट कर दिया. आप पूरा अरेंज करके भी यहां तक पहुंच सकते हैं. तो डेल्टा H2 कहाँ लिखा है, प्लस 2 डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H1, ये D में लिखा है तो D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 34. The equation for the enthalpy change is shown. The enthalpy change is Q. What is the correct expression to calculate Q? Okay. कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो इसका मतलब कंबस्शन ऑफ कार्बन ले सकते हैं हम. ओके. और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं, इसी बात को कह सकते हैं.
तो ये फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर लें, एंड जाहिर सी बात है यहाँ पर 2 कार्बन्स हैं, तो आप यहाँ पर भी 2 लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो एनर्जी की वैल्यू को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, फिर आपके पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की कंबशन करेंगे तो वाटर, और वाटर की फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो वाटर की फॉर्मेशन कर लेते हैं हम यहाँ पर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इशू इज कि यहाँ हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, हम यहाँ पर भी 3 करेंगे, हम एनर्जी की वैल्यू को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो आपने ये देखना है कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों गलत, क्योंकि एक एक कंबशन आ गया। फॉर्मेशन ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मुमकिन नहीं है, ये भी गलत। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन भी पॉसिबल नहीं है, ये भी गलत, क्योंकि डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन की वैल्यू 0 होती है, इसलिए दोनों गलत। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि ये ऑप्शन हमें सिर्फ डी में नजर आ रहे हैं, ये और ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। Separate samples of 25 cm cube of 0.1 mole per dm cube NaOH are added to each of these different acids solution as described. The temperature of each solution was 298 Kelvin before mixing. Which statement describes the temperature rises that occurs on mixing each of these acids separately with NaOH? Okay, तो याद रखिएगा कि मिथेनोइक एसिड वीक एसिड है, ये पार्टली आयोनाइज होता है, और अगर हम इसको एल्कली से रिएक्शन करवाएंगे तो ये लेस एक्सोथर्मिक न्यूट्रलाइजेशन की एनर्जी देगा। दैट्स व्हाट वी हैव डन इन क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत कि तीनों की वैल्यू सेम होगी, तीनों की हो सकती है, बिकॉज इतना एक एसिड वीक है। H2SO4 और HCl स्ट्रॉन्ग है, व्हिच इज व्हाई। देन फिर वो आपसे कह रहे हैं the temperature rises using H2SO4 and HCl are same. Again, this is wrong because H2SO4 gives 2 hydrogen ions, while HCl is a monobasic acid and it gives only 1 hydrogen ion in aqueous medium. Obviously, जब number of hydrogen ions different हैं, तो न्यूट्रलाइजेशन भी डिफरेंट होगी, सेम तो नहीं हो सकती। एक 2 मोल के लिए होगी, एक 1 मोल के लिए होगी। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज the temperature rises using methanoic acid is greater than using HCl. Wrong. Methanoic acid gives less exothermic, जबकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, फुली डिसोसिएट होगा, गिव्स मोर एक्सोथर्मिक। तो अगर एक लेस एक्सोथर्मिक है, एक मोर एक्सोथर्मिक है, तो वैल्यूज तो सेम नहीं हो सकती। सही है, इनफैक्ट इथेनोइक एसिड की ग्रेटर नहीं होगी, तो ये भी गलत है। राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, बिकॉज वो डाइबेसिक एसिड होता है H2SO4, तो जाहिर सी बात है उसमें टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज the enthalpy changes of formation for both PCl3 and PCl5 are exothermic. इक्वेशन दी हुई है, वैल्यू दी हुई है डेल्टा एच आर की, विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो भाई हमारे पास PCl3 है, और वो क्लोरीन से रिएक्शन कर रहा है, और कन्वर्ट हो रहा है PCl5 में। ये वैल्यू उन्होंने हमें दी हुई थी -124। ऑब्वियसली इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए आई नीड कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, राइट।
तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl3, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ PCl5, ओके। मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैरो बना देता हूं, ये वैल्यू और ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू माइनस इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा आपके पास -124 प्लस माइनस डेल्टा HF PCl3 माइनस डेल्टा HF PCl5 equals to 0। सही है जी। फिर ये हो जाएगा -124 माइनस डेल्टा HF PCl3 और ये हो जाएगा प्लस डेल्टा HF PCl5 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा -124 इक्वल्स टू, ये दोनों के दोनों वेरिएबल्स राइट हैंड साइड पे आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस PCl3 डेल्टा HF है तो ये PCl3 प्लस में हो जाएगा, PCl5 वाला माइनस में हो जाएगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस। वो क्या कह रहे हैं, डेल्टा H इज लेस नेगेटिव देन दिस, द क्लोरीन बॉन्ड एनर्जी इज नीडेड इन कैलकुलेटिंग। नहीं जी, क्लोरीन मैंने तो कहीं बॉन्ड एनर्जी यूज नहीं किया, तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट, बॉन्ड एनर्जी वाला इनकरेक्ट। ओके, माइनस एक्सोथर्मिक formation of PCl5, delta H reaction is less negative than formation of PCl5, is less negative than formation of PCl5। तो ये बात कुछ मुझे सेंसिबल लग रही है, बिकॉज ये मोर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और मुझे क्लोरीन की यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, मैंने कहीं भी यूज नहीं की, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज ये पूरा का पूरा फैक्टर आपका क्या हो गया, मोर नेगेटिव। सही है। So I think C is going to be the right answer. Next, question number 37. An experiment was performed to determine the enthalpy of combustion of ethanol. The data collected are shown. Mass of water given है, mass of ethanol burned, temperature rise given है, molar mass given है, specific heat capacity. Calculate enthalpy change of combustion of ethanol in kilojoules per mole. तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पर, डेल्टा H equals to minus MC delta T equals to minus M की जगह पे क्या रखूंगा मैं, मास ऑफ वाटर which is W, C की जगह पे रखूंगा 4.2 और टेम्परेचर चेंज की जगह पे रखूंगा Y। सही है, ये हो गया जूल्स। और इसको किलो जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो माइनस W 4.2 Y
upon 1000 kilojoules. Okay. Second step क्या था? moles of ethanol burnt. So मुझे मास ऑफ इथेनॉल बर्न दिया हुआ है x, मैं उसको डिवाइड कर दूंगा mr से, और mr जो है वो z है, तो z से कर देंगे, ये आ जाएगा मोल। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या होगा भाई? थर्ड स्टेप इज लाइक कि x अपॉन z मोल्स से आपको कितनी एनर्जी मिल रही है? -w 4.2 y अपॉन 1000 किलो जूल्स। तो अगर आप 1 मोल की कैलकुलेशन करोगे तो ऑब्वियसली क्या मामलात होंगे? तो ये हो जाएगा -w 4.2 y मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई हो जाएगा z से और डिवाइड हो जाएगा 1000x से। सही है, डिवाइड हो जाएगा 1000x से। कहाँ लिखा है 1000x? ए में लिखा है। The right answer is going to be an A. Okay, that's the end of this worksheet. Thank you very much, guys.